60-58 ऐसे आए थे प्री बोर्ड्स में टू 99 इन बोर्ड्स में। सो इट वुड लुक लाइक कितना सारा लिखा है तुमने और बहुत इजीली मार्क्स में कि क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, कैसे आंसर बिगिनिंग होगी, कैसे एंड, उसमें से सर्टेन डिटेल्स सीबीएसई पूछती है। मेरी चैनल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अविका, करंटली सीबीएसई 12th grader, and about today's video हम आज बात करेंगे about your half yearly comeback. So I made a video before about maths and I'll tag it below in the description, and I made one about English which is the only video that you will need for English, like सब कुछ covered है उसमें. Both of these videos links you will get in the description. Now without any further ado हम आज की video start करते हैं. So first of all I scored 90.4 in 10th and 93 in 11th without any coachings. I go to coaching right now in 12th only. Now a lot of my pookies who scored 99.6, 99.8, 99 plus, like a lot, many of them scored 95 plus percentage, 200 or 300 something. उस सब का proof also you'll get in the description, and that was the percentage on the thumbnail. ठीक है. Now first of all your awareness. देखो अगर आप सोच रहे हो कि आप बहुत लेट हो चुके हो या फिर आप पीछे रहने वाले हो, then don't worry, you have time. लेकिन when I say time इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी टाइम पास करने वाले हैं. You have to start again. जो भी टॉपिक्स तुम्हें लगते हैं कि तुम्हें अच्छे से नहीं आ रहे हैं, you have to start learning them again, categorizing them कि तुम्हें कॉन्सेप्ट में गलती आ रही है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम पड़ रही है. Also, the second thing, you have to complete your syllabus by November. So in this video, we are going to talk about subject-wise strategy along with features, books to use, and every tip that you need to know. Okay, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. And without any further ado, let's begin. Okay, first of all, maths. I scored 97 out of 100. I had basic maths. Yes, I know I lost 3 marks. मेरे सबसे कम मार्क्स मैथ्स में थे because I messed up the MCQs. And I would recommend you कि तुम आँख खोल के अपना पेपर करो, क्योंकि first of all हमारे पहली बार 50% competency आई थी, so I was quite astonished to see new type of questions. And secondly, तुम्हें फोकस करना है अपने टाइम मैनेजमेंट पे. द ओनली रीजन आई कुड नॉट मैनेज माई टाइम वॉज क्योंकि मेरी एग्जामिनर जो लाइक इन्विजिलेटर थी मेरे रूम की, वो कॉन्स्टेंटली मेरे से बातें कर रही थी. इवन दो आई टोल्ड हर कि मेरे को मेरा एग्जाम करना है. शी वाज लाइक चाय पीते हुए कि पेपर कैसा है आपका. Anyways, I won't blame it on her. Obviously, it was my mistake that I messed up. But yes, for sure, it was a slight distraction. Second thing, हम बात करेंगे अपनी NCERT के बारे में. NCERT आपको अच्छे से सॉल्व करनी है. I would recommend you कि तुम old NCERT ले आओ कहीं से, उसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है. And new NCERT को भी रेफर करते रहना. Read your theory of maths. Yes, the theory of maths. उसके बाद में do the examples. सारे examples बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, the possible chapters जो तुम्हारे सिलेबस में आने वाले हैं, I'll show it here. देखो इसमें trigonometry बहुत ईजी होने वाली है. I personally found trigonometry easier and polynomials वगैरह बहुत tough. So if you relate to it, then and the next thing that we're going to talk about is question practice. अब देखो first of all क्या क्या practice करना होता है, and I have confirmed these resources with students who score 99% and a lot more. ठीक है. First of all, your NCERT exampler, then your CFBQ, which is competency focused questions by CBSE, then allotment resources officially provided by CBSE like additional papers, sample question papers. Now इतना टाइम नहीं हो पाता है कि तुम एक चैप्टर की लेक्चर देखो, फिर NCERT करो, स्कूल भी रेगुलरली जाओ, कोचिंग भी जाओ, and then cover all these extra resources. So the solution for this would be one refresher that I can tell you, which is EduCard की मैथ्स की refresher. I have it right here to show you guys. इसमें तुम्हें first of all सारे competency based questions मिल जाएंगे क्योंकि तुम्हारे 50% competency होने वाली है. उसके बाद में secondly जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस वैरायटी की चाहिए होते हैं लाइक MCQ, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, you'll get it here. After that some tough questions of each topic are like star marked है उन पे. उसके बाद में डिटेल नोट्स एंड द प्रिंट्स आर वेरी प्रीमियम, यू सी, इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा. आफ्टर दैट द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट इज कि इसमें सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं. कॉम्पिटेंसी, NCERT एग्जाम्पलर, दीक्षा, CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, PYQs, एवरी क्वेश्चन रिसोर्स दैट यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लास 10th इसमें ऑलरेडी कवर्ड है. तो तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज में भटकने की जरूरत नहीं है. दिस विल कवर एवरीथिंग फॉर यू. After that, you will also find these error analysis sheets by after every chapter, जिसमें तुम्हें टाइम ड्यूरेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है क्वेश्चंस का कि एक्सपेक्टेड कितने टाइम में होना चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट में तुम्हारी हेल्प होगी. एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड डेरिवेशंस. बहुत जगह इंटरनेट पे डिफरेंट डेरिवेशंस होते हैं और तुम कंफ्यूज जाते हैं, देन डोंट वरी, दिस विल हैव द वंस विच आर करेक्ट एंड ऑल्सो ईजी टू लर्न. एट द एंड यू विल ऑल्सो गेट दीज चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हर चैप्टर के लिए. सो इससे तुम्हारी और अच्छी प्रेप हो जाएगी एंड एक बोर्ड लाइक क्वेश्चन पेपर का तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर CBSE पूछती है, किस तरह के आंसर्स तुम्हें प्रेजेंट करने होते हैं. सो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज दैट आई कैन रिकमेंड यू. The link for this will be in the description. Do not forget to check that out and also use my coupon code for more discount. आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में. मैथ से सबसे पहले गिवन टू प्रूफ सोल्यूशन, ये फॉलो करना है तुम्हें. डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले केसेस में 90 डिग्री का एंगल तुम्हें बना के शो करना है. सारे जो भी यूनिट्स तुमने लिखी है कि A से B को X रिप्रेजेंट किया है, A से D को L रिप्रेजेंट किया है, वो भी वहाँ पे शो कर देना. अगर रिकंस्ट्रक्शन किया है तो वो भी दिखा देना. एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. वन प्रो टिप वुड बी एक्सप्लेन योर आंसर्स टू द एग्जामिनर जैसे उन्हें कुछ नहीं आता है फ्रॉम द वेरी बेस. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम हर कैलकुलेशन करने लग जाओगे. नेक्स्ट थिंग
डू योर रफ वर्क एट द लास्ट पेज, लाइक एकदम लास्ट में करना, बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें और बहुत स्पेस भी मिलेगा। रफ वर्क से तुम्हें कहीं मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इस समन चीज के रफ वर्क से मार्क्स मिल जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। सेकेंडली अबाउट साइंस, देखो सबसे पहले तुम्हारी एनसीईआरटी ही तुम्हारा सब कुछ है, लेकिन व्हेन आई मीन एनसीईआरटी इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू रीड, क्योंकि सिंपल लाइंस गिवन है बट सीबीएसई आस्क क्वेश्चंस बाय लाइक स्लाइटली टैंगलिंग दोज लाइंस इन क्वेश्चंस। तो मेरा बेसिकली मतलब ये है बात का कि जहाँ पे जैसे एज और बिकॉज लिखा है वहाँ से एक्सेप्शन रीजन फॉर्म हो सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू रीड योर फिजिक्स की एनसीईआरटी, मैंने स्किप कर दी थी, वहीं मेरे मार्क्स कट गए थे, 2 मार्क्स कटे थे साइंस में, एंड दिस वाज द ओनली रीजन। आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अदरवाइज मेरी और अच्छी परसेंटेज आ सकती थी। सेकेंडली डू योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत अच्छी रिसोर्स होती है, ठीक है। थर्ड आई यूज एजुकार्ट एज माई क्वेश्चन बैंक, दिस इज द न्यू वर्जन एंड यू विल फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें सब कुछ कवर्ड था, तो मेरे को इतनी सारी मल्टीपल रिसोर्सेज को बार बार ऐसे ढूंढना, समझना, फिर आंसर्स के लिए सर्च करना, ये सब नहीं करना पड़ रहा था, इसमें सब कुछ था। ऑल्सो उसके बाद में बात करते हैं आपकी साइंस के फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स फॉर्म कर देना, जो सारे लाइट के डायग्राम्स है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के, वो लर्न कर लेना। ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स हैं जितने भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सारे लर्न कर लेना। उसके बाद में सर्टेन कंडीशंस, वो सभी तुम्हें लर्न करके जानी है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस एंड बायोलॉजी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेक योर एनसीईआरटी परफेक्ट, बाय दैट आई मीन यू विल फाइंड माय नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वी आर ट्राइंग टू रीच 100K दिस ईयर, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना जहाँ से तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन फॉर्म्स हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे रिफ्रेशर को रेफर करते हुए क्वेश्चन मार्क कर देना। देन वी हैव एसएसटी। फॉर एसएसटी आई हैव रियली गुड टिप्स, आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना, जितने भी डायग्राम्स के नीचे टाइमलाइन, उनकी लाइक डिटेल्स गिवन है कि किसने पेंटिंग बनाई थी, व्हाट वाज द पेंटर्स नेम, एवरी डिटेल, हर एक जो सिंबलाइज कर रही हो पिक्चर, जो लाइक सर्टेन एलिमेंट्स का जो सिंबलिज्म है वो सब लर्न कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सारी टाइमलाइंस लर्न कर लेना, जितनी भी वॉर्स हुई उन सब का अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्लो लर्न कर लेना कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो फाइंड शॉर्ट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइमलाइंस, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दे आर रियली इजी। देन रिफर टू दिगराज सर के लेक्चर्स। ऑल्सो आई फॉरगॉट अबाउट सर्टेन टीचर्स, देखो मैथ्स के लिए शोभित सर या ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, एंड साइंस के लिए आप समृद्धि मैम से पढ़ सकते हो, या फिर ऋतिक सर तो है ही, ठीक है। उसके बाद में वी हैव एसएसटी। ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स आते हैं ना आपके, वो वाले चैप्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, इकोनॉमी वाला चैप्टर है लास्ट में ज्योग्राफी की बुक में, उससे मैप्स अगर आपके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, तो आपको वो चैप्टर्स भी रीड करने हैं, बिकॉज उस मैप के आगे पीछे के जो 1-2 पेजेस हैं उसमें से सर्टेन डिटेल्स सीबीएसई पूछती है, जैसे द लार्जेस्ट डिपॉजिट फॉर दिस सर्टेन मिनरल और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर दिस स्पेसिफिक क्रॉप, तो ऐसे क्वेश्चन और ऐसी डिटेल्स में मार्क कर लेनी है। उसके बाद में जो हिस्ट्री के मैप्स हैं वो तो बहुत ईजी है, गिनती के 2-4 मैप्स हैं, जैसे चंपारण बिहार में कभी भी याद है 2-3, तो वो तो बहुत सिंपल है, गांधी जी वहाँ जाके क्या कर रहे थे, एंड वेयर डिड द सॉल्ट मार्च टेक प्लेस, दांडी कहाँ पे है, एवरीथिंग। देन ज्योग्राफी के जो भी बॉक्सेस है वो लर्न कर देना, उनकी इन्फॉर्मेशन, पहली तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि तुम्हारे एमसीक्यूज में जरूर पूछी जाती है। देन वी हैव नेमोनिक्स, आपको नेमोनिक्स की शीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। एंड अगर तुमने अब तक कमेंट नहीं किया, देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, आई विल स्कोर 99% in class 10. This was my manifestation board that I made, and I hit 50K subscribers already, so that was also all because of manifestation. तो कमेंट जरूर करना अपनी ड्रीम परसेंटेज को। Then we have civics, learn everything in form of फ्लो चार्ट, स्पेसिफिक सीट्स वगैरह के नंबर लर्न कर लेना। मेरे को बहुत चिढ़ थी पहले पॉलिटिकल साइंस से, बट देन आई लव्ड इट बिकॉज इट वाज द इजीएस्ट। जितने भी कैरिकेचर्स है वो भी लर्न कर लेना। देन वी हैव लास्टली इकोनॉमिक्स, द फेवरेट, मनी एंड क्रेडिट जिस चैप्टर्स है, बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स है, सिंपली उनके प्रोसेसेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और कॉम्पिटेंसी में वो जो भी स्टोरीज होती है ना इकोनॉमिक्स की बुक में, वो लर्न कर लेना। कॉम्पिटेंसी में वही पूछते हैं, इवन एग्जैक्ट केस बेस्ड वहाँ से उठ के आ जाता है, जो टेबल्स फॉर्म होती है ना, तो वो अच्छे से लर्न कर ले। इवन जीडीपी वाली टेबल तो रट के चले जाना, मेरे बोर्ड्स में आई थी, मैंने लिटरली मेरे एग्जाम की सुबह उसे पढ़ा था, ये सोच के कि शायद दे दे, एंड इट वाज लिटरली आस्क्ड in my board examination that from the following country which has the highest GDP, and उसमें आंसर इंडिया का था। Lastly, we have paper presentation for SST. Write your answer in points. 2 marks के questions के लिए 3 to 4 points are enough. 3 marks के लिए 4 to 5 points, and 5 marks के लिए 5 to 6 और 6 to 8. I always wrote extra points in case मेरे वो 5 में से कुछ गलत है तो मैं extra लिख के आती थी. How to write a point? Always write a heading for a point in 3 and 5 marks के questions. 2 marks के question को ज़्यादा extend करने की जरूरत नहीं है, but write the extra knowledge. If you know, अगर तुम्हें पता है ये इसके related है, इससे relevant है, तो उससे लिख के आओ वहाँ पे। I would recommend you to go for एजुकार्ट के रिफ्रेशर्स। उससे मैंने यूज़ करी थी ना, तो मैंने इतने अच्छे से समझ आ गया था कि क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, कैसे आंसर बिगिनिंग होगी, कैसे एंड होगा। तो बेसिकली यू विल गेट एन एग्जाम्पल एंड बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एसएसटी में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड एज दिगराज सर सेज कि सवाल बेरूपिया होता है, तो क्वेश्चन एक ही होता है, बस उसे घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ऑल्सो राइट योर हेडिंग, इसका मतलब है पॉइंट्स में कि जिस बारे में पॉइंट है उसकी 3-4 वर्ड की हेडिंग लिख दो, ताकि टीचर फटाफट वो रीड करे और 2-3 लाइन्स में से एक्सटेंड करके समझा दो। सो इट वुड लुक लाइक कितना सारा लिखा है तुमने और बहुत ईजिली मार्क्स मिलते हैं लास्ट
लास्ट में जाते जाते। तो देन वी हैव हिंदी। देखो आई ऑलरेडी मेड डेडिकेटेड वीडियोस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंग्लिश वाला तो एकदम परफेक्ट है, एंड हिंदी के लिए मैं लास्ट ईयर बनाई थी क्योंकि मेरी हिंदी बहुत वीक थी। मेरी इंग्लिश और हिंदी में 60-58 ऐसे आए थे प्री बोर्ड्स में, टू 99 इन बोर्ड्स इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो आई नो एक्जैक्टली व्हाट यू नीड। ठीक है, हिंदी में मेरी मात्राएं बहुत मिस्टेक होती थी, अनसीन पैसेज में बहुत मिस्टेक होती थी, आंसर में एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं आता था। आई नो ऑल द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट यू मस्ट बी फेसिंग, तो वो सारी वीडियोस जरूर देख लेना। उसके बाद में सम लाइक लिटिल टिप्स दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ, गो एंड सर्च फॉर वीबली साइट, उसमें तुम्हें एक पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने पहले इस वीडियो में बताया हुआ है, तो तुम वो देख सकते हो। उसके बाद में अपनी क्षितिज कृतिका वाली बुक्स में, कृतिका वाली बुक में तो अच्छे से ऑथर का नाम लर्न करना है एंड तुम्हें आंसर प्रेजेंट करना है, लाइक any quote from the chapter or related to the chapter if possible, या फिर डायरेक्टली टाइटल और नेम ऑफ द चैप्टर, देन ऑथर का नाम, देन थीम कि वो किस बारे में होता है या फिर वो पार्ट, और उस थीम तुम्हें इंग्लिश में फॉलो करना है, एंड देन द मेन पार्ट ऑफ द आंसर जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एंड लास्टली कंक्लूजन। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्थिति उस समय की और आज के दशक में क्या कॉमन डिफरेंसेस रहते हैं। मैं हिंदी भूल चुकी हूँ, आई एम सो सॉरी, बट क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इट वॉज लाइक आई एक्सप्लेन इट प्रीटी वेल। उसके आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है आंसर प्रेजेंटेशन के, तुम्हें उसमें मिल जाएंगे, एंड हिंदी के परफेक्ट नोट्स विद सो गुड वोकैबुलरी दैट टीचर्स आई इवन forwarding it to their WhatsApp groups. Proofs I got from the comments of this year's February board exams. ठीक है, तो तुम वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे नोट्स। एंड इंग्लिश के लिए तो लिटरली परफेक्ट नोट्स है लर्न करने के लिए, गुड वोकैबुलरी, प्रॉपर फॉर्मेट, एक्सप्रेशन, लाइन्स टू लाइक यू नो बेटर वोकैबुलरी के साथ एनालिटिकल पैराग्राफ एंड लेटर के लिए एवरीथिंग यू विल फाइंड इट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, एंड कमेंट बिलो। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।